بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ لداخ یونین ٹیریٹری میں بھی آج عید الاضحیٰ کا تہوار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جگہ جگہ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات کا اہتمام ہوا۔ لداخ خطے کے دراس میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ دراس میں منعقد ہوا۔ یہاں مولانا عبدالغفور نے نماز عید پڑھائی۔ اس دوران عالم اسلام، قوم اور ملک کی سلامتی اور آپسی اتحاد و اتفاق کے لیے دعا کی گئی۔ اس خطے میں مختلف مقامات پر عید کی نماز کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ امرناتھ حادثے پر دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا۔ وہیں لداخ کے ضلع لیہ میں بھی پوری عقیدت کے ساتھ عید منائی گئی۔ ضلع لیہ میں عید الاضحیٰ کی مرکزی تقریب عیدگاہ اور امام باڑے میں منعقد ہوئی۔ اس دوران خطے اور ملک میں امن و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ مذہبی رہنماؤں نے امرناتھ کے یاتریوں کے لیے بھی دعا کا اہتمام کیا۔ بعض ہم دین اور اپنے مذہب کے تحت جب یاترا کے لیے چلے گئے تھے تو ان یاترا والوں پہ ایک پانی کی بارش کی وجہ سے جو حادثات رونما ہوا، جس میں بہت سارے دنیا سے چلے گئے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی طرف سے سب سے پہلے ان کی جو بازماندگان کو تسلیت عرض کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ آپ کی اس غم میں ہم بھی شریک ہیں، اور ساتھ میں جو دنیا سے گزر چکے ان کو بھی ان کے اعمال کے حساب سے انشاءاللہ خدا جزائے خیر دے۔ ترال میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ، خانقاہ فیض پناہ اور دارالعلوم نور الاسلام میں نماز عید ادا کی گئی۔ ترال کے مضافاتی علاقوں میں بارش کے سبب لوگوں نے جامع مساجد میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر علماء نے قربانی کی فضیلت بیان کی اور عالم انسانیت کے لیے خاص طور پر امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ قصبے پامپور میں بارش کے سبب آج عید نماز خانقاہ عالیہ میں ادا کی گئی۔ ٹانچہ باغ میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی نماز عید ادا کی۔ ادھر ادارہ اوقاف اسلامیہ پامپور نے لوگوں کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں اوقاف کمیٹی کے پاس جمع کرنے کی اپیل کی ہے۔ بی ڈی سی چیئرمین الطاف احمد میر نے اہل اسلام کو مبارکباد پیش کی۔ اور اس بیچ بیمنا سری نگر میں قائم امام بارگاہ آغا سید یوسف شارع فضل اللہ میں آغا سید ہادی کی رہنمائی میں نماز عید ادا کی گئی، اور اس دوران بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ آغا ہادی نے فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کی، ساتھ ہی انہوں نے عالم اسلام اور انسانیت کے حق میں دعا کی۔ ضلع بانڈی پورہ کے سوناواری کی مختلف مساجد اور امام باڑوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ مرکزی امام باڑہ، شادی پورہ اور گنجی پورہ سوناواری میں شیعہ ایسوسی ایشن کے اہتمام سے عید کی نماز ادا کی گئی۔ اس میں نمازیوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ امن و خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ پٹن، ماگام، بیروا، ٹنگ مرگ، ایچ ایم ٹی، سری نگر کی جامع مسجدوں اور عیدگاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ ادھر سنگھ پورہ کھن پیٹ عیدگاہ میں بزرگ عالم دین آقا سید باقر الموسوی الصفی نے نماز عید پڑھائی۔ یہاں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آقا سید باقر نے فلسفہ قربانی پر خطبہ بھی پیش کیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ وہیں ضلع ڈوڈا میں بھی عید الاضحیٰ کا مقدس تہوار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ 3 سال بعد ڈوڈا کے تمام گاؤں دیہات میں عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی گئی۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ضلع میں سب سے بڑی تقریب مرکزی عیدگاہ ڈوڈا میں منعقد ہوئی۔ امام و خطیب خالد نجیب سہروردی نے عید الاضحیٰ کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ کاستی گڑھ، بھاگوا، مرمت، بھرت بگلا، گدنا اسٹر میں بھی عیدگاہوں میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی اور سنت ابراہیمی کا فریضہ انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سب کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ملک باعث رحمت، باعث برکت بنائے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، اظہار کا پیغام ہے۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ تج دینے کا امتحان ہے۔ اسی کی یاد میں جو سب سے بڑی قربانی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے اس کو ایک جاری کیا تھا۔ پونچھ ضلع ہیڈ کوارٹر میں
ईद उल अजहा बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शहर की सभी मसाजिद में 2-2, 3-3 जमातों में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क और इलाके में अमन खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बेशतर मसाजिद के बाहर हिंदू और सिख तबकात के लोग अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए मौजूद नजर आए। सबसे पहले आज के इस मुबारक मौका पर तमाम अहलियान वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ बरादरान वतन को ये मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जो एक हमारी गुज़श्ता रवायत रही है और मुसलसल चली आ रही है कि हम आपसी भाईचारा, हमदर्दी, मोहब्बत, अख़ुवत को हाथ से जाने नहीं देते और जितने भी हमारे त्यौहार हों, जिस मर्ज़ी मज़हब के हों, हम मिलजुल कर मनाते हैं। और उसी का एक मुज़ाहिरा आप यहाँ पुंछ में भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में खड़े हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ईद कुर्बानी पर आज जिला राजौरी की मुख्तलिफ मसाजिद में पूरे जोश व खरोश के साथ नमाज ईद अदा की गई। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों लोगों ने ईदगाह मस्जिद राजौरी में नमाज ईद अदा की। मूसलाधार बारिश के बायस ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने इलाके की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। डीसी विकास कुंडल ने अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। राजौरी वासियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रॉस्पेरस, हैप्पी और बहुत खुशहाल ईद सबको विश करता हूं और सब लोग पीस और हारमनी से रहें और राजौरी की तरक्की हो। किश्तवाड़ कस्बे और अतराफ के इलाकों से हजारों लोग जोक दर जोक तारीखी ईदगाह चौगान ग्राउंड पहुंचे थे। तकरीबन 15,000 लोगों ने नमाज ईद अदा की। किश्तवाड़ की जामा मस्जिद के इमाम फारूक अहमद कशलू ने नमाज पढ़ाई। सरवर, बोंजवा, चित्रू और दक्षिण के इलाके पडर, दरबाशला में भी पुरअमन तरीके से ईद की नमाज अदा की जाने की इतलात मिली है। 16 सिविल इंतजामिया के साथ साथ दीगर बिरादरियों के लोगों ने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। ईद जो है हमारे लिए सलामती की एक तारीख है और ये ईद जो है हमारे लिए एक रोशनी ले आई है। हम आपसी भाईचारे को कायम दायम रखें और अल्लाह के आज ईद कुर्बानी है और ये हमारी कुर्बानी जो है कबूल हो जाए और हम प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। अमन तरीके से हमारी नमाज पूरी हो गई। हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की ओवरऑल पब्लिक का, ये सबों ने हमें सपोर्ट किया और नमाज को कामयाब हो गई। जिला रामबन में भी ईद उल अजहा निहायत ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। अमरनाथ के जख्मी यात्रियों की सेहतियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इस्लाम के आइन के मुताबिक इंतिशार और इख्तिलाफ जो है वो उसको मुसलमानों के यहाँ गुनाह अजीम करार दिया गया है। ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है कि आपसी इंतिशार और इख्तिलाफ को फ़रोग़ दिया जाए। चूँकि कुर्बानी का मतलब और मकसद ही यही है कि सबसे पहले अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी है उसको कुर्बान किया जाए और फिर मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए, यगानगत को, यकताई को फ़रोग़ दिया जाए और इसी के ज़रिए से जो है मुसलमानों को ताकत मिलती है और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। 2 साल के बाद उधमपुर में ईद उल अजहा मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। उधमपुर के इदारा कॉलोनी में वाक़े ईदगाह में नमाज ईद अदा की गई। तमाम नमाजियों ने अमन के लिए और मुख्तलिफ ज़ातों और खित्तों के लोगों के दरमियान हम आहंगी के लिए दुआएं की गई। कुर्बानी ये हमारे अल्लाह के खलील, अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको पूरी उम्मत और पूरे आलम इस्लाम जो है उसको ज़िंदा करता है और उससे के मुताल्लिक़ कुछ अहकामात जो इस्लाम के हैं वो बयान किए गए और साथ साथ के अंदर जो है पूरे आलम इस्लाम और पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आज का दिन दुआ की गई है, अमन की, भाईचारे की, इत्तेहाद की, इत्तिफाक की, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात को अल्लाह दुरुस्त फरमाए और अमन व भाईचारे की अल्लाह तबारक व तआला कायम फरमाए। जिला कठुआ की जामा मस्जिद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान मुल्क में अमन व शांति के लिए खुसूसी दुआ की गई। अमरनाथ की यात्रा के दौरान कुदरती आफत में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ दुआ की गई। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और यात्रा की बहाली की तमन्ना भी जाहिर की गई।
हमारे मुल्क में हमारे वतन में एक भाईचारा कायम रहे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जैसे हमारा जो भाईचारा पहले था वैसे ही आगे रहे। के अंदर सारे सिख भाई, हिंदू भाई और ईसाई भाई सब हमारे साथ मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं और हम सबको एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद की भी जैसे हम और उनके त्यौहार होते हैं, हम भी जाते हैं उनके त्यौहारों की उनको मुबारकबाद देते हैं और मिलजुल के प्यार से हम सब इकट्ठे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं वो इकट्ठे रहें और हमेशा इकट्ठे रह के चलने चाहिए। जो शरारती तत्व होते हैं उनका तो काम है ये करना, तो हम उनको भी यही करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा बना रहना। जिला सांबा में ईसार और कुर्बानी की ईद मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। बड़ी ब्रह्मना, शाह तालाब, बरजानी, सकलैनी, विजयपुर, पंगादौर की ईदगाहों पर नमाज ईद अदा की गई। एकता और भाईचारे बने रहने की दुआ भी की गई। जिला इंतजामिया की तरफ से दरकार इंतजाम किए गए थे। ख़ुव्वत और मोहब्बत और एक का पैगाम लेकर ये दिन आता है और आज हमने नमाज ईद यहाँ अदा की। हमने दुआ की कि पाक परवरदिगार रब इस मुल्क में हमारे मुल्क को सलामत रखे और इसमें अमन व अमान और सलामती हो और तमाम तरह की नज़र बद से हम सब महफूज रहें। हमारा ये ख़ित्ता जम्मू कश्मीर ये इसमें भी अमन व अमान और सलामती हो और लिहाजा पूरी इंसानियत के लिए हमने दुआएं की। यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग और बड़े बुज़ुर्ग लोग आए थे, काफ़ी लोग जमा हुए, हम सब ने दुआएं की। वक्त हो गया एक छोटे से